Very good evening all of you. कैसे हैं आप लोग? How are you people doing? I hope I'm audible to everyone. Please give a hi if you can hear me. Okay, so nice to have you all here. तो आज टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है. टॉपिक है सूडो फोर्स and I have seen कि people find it quite difficult, quite non-intuitive कि ये सूडो फोर्स क्या है and what is the requirement of this type of force. तो आज ये सारी बात हम करने जा रहे हैं कि क्यों इस फोर्स की ज़रूरत है and why do we even need it at all while solving the problems. वीडियो क्यों नहीं आ रही? किसकी वीडियो नहीं आ रही? Are you able to see? Yes, questions करेंगे exactly. We'll do questions on pseudo force. Don't worry about it. Okay, so if you are not able to see the video, then you can do one thing, that you just exit the app and rejoin again. Can you take my name? Kazimul Hassan. Yes, I can take your name. So I think you can check that it's a live session. Hello, whosoever is there. All right, guys. So chaliye, let's begin with this. First of all, I am trying to explain you what is the requirement of pseudo force at all. कि pseudo force की ज़रूरत ही क्यों है? Let's understand that. Suppose here is an elevator. Inside the elevator, there is a person standing. Stick man draw करते हैं. एक stick man अंदर है. And there is a box kept inside that elevator. And this elevator is going up with acceleration A. So this is the person A, and let's say at the same time there is a person B on the ground. अब जरा analyze करते हैं कि if the block's mass is m, how would the motion of block m would appear to both A and B? Yes, I am about to define what is pseudo force. With this example, it would be visible to you. Okay, you'll be able to understand. Yes, just wait for it. With this example, you'll get to know what is pseudo force. So elevator is going up with an acceleration A. Two people A and B, one on the ground, one inside the lift. Can you tell me that what will be the equations of motion of block M with respect to person B who is on the ground? So person B क्या बोलेगा? Person B would going to draw a free body diagram and it would going to say that block has a normal reaction acting on it. It has an mg acting on it, and at the same time it's going up with an acceleration A. So what would the person B write the equations to be? Person B कहेगा that normal reaction minus mg equals ma, and that implies that normal reaction is mg plus ma. That's what appears to person B. ये person B को appear होता है with respect to person B because he is on the ground, right? So you can see this also, that the normal reaction has increased from the weight. That's why you must have experienced also कि जब भी elevator में जाते हैं, an elevator is accelerating up, your weight increases. You feel that, right? You feel that the weight has increased, and when the elevator goes down, you feel that your weight has reduced, isn't it? So that is what that happens in real life, and you can see this here also. Weight में एक extra term add हो जाती है. अब मेरा question ये है, what about the same equations with respect to person A? If person A writes the same equation, what would it appear to person A then? Hello everyone, those who are joining now. Yeah. So let's write the equation due to person A. Please answer me, will person A see the block M moving, or would it appear to be at rest to A? Will the block of mass M would appear to be at rest or moving to A? For A, it will be at rest. Everyone agree with this? That for A, the block of mass M would be at rest, right? तो इसका मतलब अगर A उसकी equation लिखेगा, I am asking, what would the condition of block of mass M would appear to A? A जो कि lift में साथ में है, right? So to person A, it would appear that block M is at rest. So now I am writing the equations with respect to A. A के frame में अब मैं equation लिख रहा हूँ.
So A is saying that there are only two forces acting on the block, mg, normal, and just now what did we say, that A को appear होगा block M is at rest. तो इसका मतलब it would going to say that the forces are balanced according to A. तो A क्या लिख देगा, A बोलेगा N equals mg with respect to A. And just look at the contradiction. एक तो ये equation आ रही है, एक ये equation आ रही है. One has to be wrong, don't you think? So which one has to be wrong? A has to be wrong, because this is our experience कि जब भी lift ऊपर जा रही है and we see our weight, we feel our weight has increased. So this equation has to be correct and the person A's equation have to be wrong. A की equation जो है वो गलत है, तो ये equation यहाँ पे गलत हो गई. Now the problem, what is the problem with it? क्यों A की equation गलत हो गई? Can you all tell me why the equations of A is wrong for that block? Anybody? Sir, I have a doubt about circular motion. Please clear it. Okay, many of my students have doubts on circular motion. But please clear first of all this problem, that why the equations with respect to A are wrong. Why it's not coming same as this? A is not in an inertial frame. Exactly. Everybody understand that? Because A is inside an elevator that is going up. So that means he is in a non-inertial frame. A is not right. A is wrong. N is not equal to mg. N is greater than mg. Okay. So that means A is in a non-inertial frame. So what is the solution? उसका solution क्या है उसकी equation सही करने का? Solution is to include a pseudo force, an imaginary force, as the name suggests. कि ये जो force है ये imaginary है. You have created it. It's a forged one. तो ये जो force है ये कैसे वर्क करता है और क्या इसकी कंडीशन है? सो कंडीशन सबसे पहली है, जो भी फ्रेम का एक्सेलरेशन हो, वॉट एवर द फ्रेम्स एक्सेलरेशन इज, द सूडो फोर्स विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू इट. तो जरा बताइए कि यहां सूडो फोर्स कहां लगेगा? अगर फ्रेम ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे या ऊपर? टेल मी. सूडो फोर्स वुड एक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड इफ लिफ्ट इज गोइंग अप? Anyone who can answer that? Downward, exactly, because it acts opposite to frame's acceleration. So pseudo force लगेगा नीचे. Now the question is, what is its value? Well, its value is mass of the block times acceleration of the frame. That is the pseudo force value. समझ में आया सबको? हमेशा pseudo force की value क्या होती है? This is your pseudo force, FP. ये हमेशा होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट इज एक्टिंग टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. अब जरा ये फोर्स हम इंक्लूड कर दें ए के लिए, एक सूडो फोर्स एक्स्ट्रा आ गया नीचे, एम ए, और अब देखो बात बन जाएगी, बिकॉज नाउ ए वुड से दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अप एंड इट्स बैलेंसिंग टू फोर्सेस एम जी एंड एम ए. बिकॉज ए के लिए तो अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे ही है, सो ए वुड से दैट forces on A is balancing all the forces including the pseudo force. It is in balance condition. और अब देखो, तो अब देख सकते हो that these two are now matching. That means pseudo force is solution to the problem that was arising in Newton's laws of motion before. अब देखो pseudo force लेते ही दोनों इक्वेशन सेम हो गई. सबको समझ में आया? Yeah, I'll repeat again. I was saying कि with respect to A, block was initially rest. फाइनली भी रेस्ट पे ही रहता है हमेशा. व्हेन ए डिड नॉट कंसिडर अ सूडो फोर्स, इट वाज राइटिंग एन इक्वल mg. दैट वाज रॉन्ग बिकॉज n वाज नॉट इक्वल टू mg. सो व्हाट सॉल्यूशन ही डिड? ही अप्लाइड अ सूडो फोर्स. देन सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू फ्रेम्स एक्सेलरेशन. अगर फ्रेम ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, फ्रेम राइट जाती है तो सूडो फोर्स लेफ्ट, इफ फ्रेम गोज लेफ्ट सूडो फोर्स राइट, ऑलवेज ऑपोजिट. सो अ डाउनवर्ड सूडो फोर्स एक्टेड बिकॉज द फ्रेम वाज गोइंग अप. And so a downward force was included. Then again he wrote the equation and it came out to be correct then. So that's how pseudo force works. All right. Now it's time to do some problems. Shall we? Let's do it. चलिए problems करते हैं. So there is a cart. ये cart है and it's traveling on horizontal ground. And this cart is traveling with acceleration a.
इनसाइड द कार्ट देयर इज अ पेंडुलम, पेंडुलम है. अब ऑब्वियसली कार रेस्ट पे होती तो पेंडुलम वर्टिकली डाउनवर्ड होता, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट एट रेस्ट, इट्स मूविंग. सो नाउ पेंडुलम वुड मेक सर्टेन एंगल ऐसे, एंड इट्स एट रेस्ट. नाउ कार मूव कर रही है, द पेंडुलम इज एट रेस्ट, राइट. सो यू हैव टू टेल मी दैट एट व्हाट एंगल वर्टिकल से कितना एंगल बना के दिस पेंडुलम इज रेस्टिंग. What is the angle theta here? You have to determine the angle theta at which it is resting. Are pseudo force and Einstein's principle of gravitation same thing? No, they are not. Is this problem clear to everyone? This pendulum is right now in equilibrium in a cart that's moving with acceleration a. So what is the angle theta here? Theta with vertical. Calculate that angle. Einstein says that accelerating references create a gravitational force. Einstein says a lot in relativity, but in general mechanics you don't include that all. Or you could say that general mechanics cannot explain what Einstein is trying to say. Theta is tan inverse A by G. Somebody got that answer. Others, did you also get the same? Theta is tan inverse A by G. You people also got the same? 90 degree आ गया किसी का, बताइए. How can that be 90 degree? So let's solve, guys. How you can solve this question? You can go inside the cart. You can go and stand inside the cart. So when you are inside the cart, don't you think you are in a non-inertial frame because that frame is accelerating? और कहाँ accelerate कर रही है? That frame is accelerating to the right. So if frame is accelerating to the right, where would the pseudo force act? Always opposite to frame's acceleration. तो pseudo force लगेगा पीछे. Frame के acceleration के हमेशा opposite लगता है pseudo force, isn't it? तो अब जरा free body diagram बना लेते हैं. इधर separately मैं बना लेता हूँ ताकि वहाँ पे स्पेस कम है. तो सो दिस इज दैट स्ट्रिंग मेकिंग थीटा विद वर्टिकल. तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको कुछ इस तरह दिखेगा कि यहाँ पे एक सूडो फोर्स है टुवर्ड्स द लेफ्ट, उसका खुद का वेट लगेगा, यू कैन नॉट डिनाई दैट, वेट तो लगना ही लगना है, mg. और स्ट्रिंग में एक टेंशन है, दिस टेंशन इज देयर इन द स्ट्रिंग. तो और ये तो आपका सूडो फोर्स है ही, सूडो फोर्स इज ऑलरेडी देयर Fp. और पर्सन को ये पेंडुलम कैसा दिखाई दे रहा है? द पर्सन वुड ऑब्जर्व दिस पेंडुलम टू बी एट रेस्ट. उसको वो रेस्ट पे दिखाई देगा. इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं. तो अब कैसे बैलेंस करें? तो टेंशन के दो कंपोनेंट ले लो. टेंशन के यहाँ दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक वर्टिकल. और जरा बताओगे कौन सा एंगल होगा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा. तो ये आएगा टी कॉस थीटा, ये आएगा टी साइन थीटा. अब जरा देखो, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस. तो यहाँ क्या इक्वेशन आएगी? वी विल गेट 90 इफ कार्ट इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. नॉट नेसेसरी, इवन इफ इट इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन यू कैन गेट लेसर देन 90, जरूरी नहीं है. तो देखिए अब फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं. क्या इक्वेशन आएगी? पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस करते हैं. टी साइन थीटा इक्वल एफ पी. सूडो फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टी साइन थीटा. और mg किसको बैलेंस कर रहा है? और आई शुड से टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को. ये दो इक्वेशन है. अब बताइए कि सूडो फोर्स क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब ma, ये सूडो फोर्स है. तो अब इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. लेट्स डिवाइड 1 and 2. तो जब डिवाइड करोगे t कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा? tan. और यहां पे जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? a by g. तो देयर इट इज, यू गॉट द एंगल. एंगल कितना है? tan इनवर्स a by g. So all those who answered this are correct.
तो देखिए सूडो फोर्स का फिर यूज हुआ यहाँ पे, देखा आपने किस तरह सूडो फोर्स का यूज हुआ. सर प्लीज एक्सप्लेन सूडो फोर्स इन द केस when an observer is in a rotating frame of reference like a rotating disk. See, in rotating cases the pseudo forces are centrifugal. Okay, so centrifugal forces are a different thing. अभी हम डिस्कस करें फॉर लीनियर मोशन, अगर टाइम मिला तो फिर उसे भी डिस्कस करेंगे. we'll discuss that one also. And we have people joining on YouTube also. Hello all of you. We have Muhammad Shamshad, we have Satabdi, all these people have joined on YouTube also. Good evening, hello, how are you people doing? It's always nice to hear from you people. Sir, how can you chat with us? I'm chatting with you right now, isn't it? That's the advantage of it. This is the live session. So I'm here chatting with you, you please respond. This is what is said by Nishant Nagar. Okay, and also you can do one more thing, guys. You can also install InstaSolve app, all the people on YouTube, and you can join there. You can chat with us over there. That is also one of the option. All right. So, chaliye guys, let's move ahead. Time to do another question on pseudo force. This question is really good. देखते हैं कितने लोग ये सॉल्व कर पाते हैं. Here is the horizontal ground and I have an inclined plane on it. ये एक inclined plane रखा हुआ है इस पे and this angle is theta. Now there is a block kept on it. इस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, mass m and this inclined plane having mass capital M. This angle is theta and I just release it, no friction anywhere, smooth surfaces. All surfaces are smooth. Okay, now my question to you is, if I release this block, what will be the acceleration of it with respect to ground? इस ब्लॉक का acceleration क्या होगा with respect to ground? You might be like, sir क्या easy question पूछा, g sin theta. कितने लोगों का आंसर g sin theta है कि सर with respect to ground will be g sin theta, easy as that. How many people think that कि this is the answer? Anybody with g sin theta? No, none. So thank God nobody thinks like that, because you need to understand it is not fixed. The inclined plane is not fixed, it is free to move. अब जरा सोचिए कि अगर ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा, it will be pushing this incline. So this inclined plane would move to the left. This wedge would move to the left as the block comes down. तो ब्लॉक के दो मोशन होंगे. One motion would be when it's coming down, one motion it is going to the left also along with the inclined plane. So you have to give me its acceleration of small m with respect to ground. Ground के respect में small m का acceleration कितना होगा? You have to determine that. Please try, attempt. Try it out. What will it be? Yes, Nishant, for doubts you can always install our app and there you can post your doubt as well. You will going to get the solution over there on InstaSolve. Do we need pseudo force here? Yes, think you would need the pseudo force if you are analyzing with respect to inclined plane, isn't it? अगर आप inclined plane पे खड़े हो और वहां से analyze कर रहे हो ब्लॉक को, तो pseudo force लगेगा. क्यों? क्योंकि inclined plane खुद move करेगा left की तरफ. So that's what it is the case. If you are standing on incline, then you need the pseudo force. So try everyone, let's see.
0 because capital M is pushed back side, so M is at one place. But see, don't you think it will come down also? No doubt it goes to the left, but at the same time it comes down also. So दोनों होता है. तो रेस्ट पे तो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑल्सो वी सी इट मूविंग डाउन. m बाय m प्लस एम जी, ये किसी का आंसर है. इट माइट ऑल्सो बी सॉल्व विदाउट सूडो फोर्स. यस डेफिनेटली विदाउट सूडो फोर्स भी सॉल्व हो सकता है. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप खड़े हो ऑल द टाइम, इट कैन बी सॉल्व. बट द फैक्ट इज सूडो फोर्स का यूज क्या है? सूडो फोर्स यूज इज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. तो प्रॉब्लम्स तो बिना सूडो फोर्स के भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है सूडो फोर्स यूज करके. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Whosoever has said this, you have brought a nice point, but only in horizontal direction. वर्टिकल में तो है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है वर्टिकली इंक्लाइन, बट दिस इज मूविंग. तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, बट हॉरिजॉन्टली इज जीरो. ऑलराइट गाइस, शैल वी सॉल्व दिस? सॉल्व करें इसे. चलिए तो शुरू करते हैं. अब एनालाइज करते हैं हम स्मॉल m को इंक्लाइन प्लेन पे जाके. इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो जाते हैं और वहां से एनालाइज करते हैं. तो चलिए हम खड़े हैं यहां पे और यहां से इस ब्लॉक का मोशन देख रहे हैं. अब पहले तो ये बात समझने वाली है कि जैसे कि बात हुई, अगर ये नीचे आएगा तो ये प्लेन लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना चालू कर देगा. तो इसको बोलते हैं कि लेट्स से इसका एक्सेलरेशन है कैपिटल ए. कैपिटल ए से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है. और जब मैं अगर वहां जाके खड़ा होऊंगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो स्मॉल m का मोशन मुझे कैसे दिखेगा? हाउ वुड स्मॉल m अपीयर टू मी? स्मॉल m वुड अपीयर टू मी ओनली गोइंग डाउनवर्ड, क्योंकि मुझे अपना लेफ्टवर्ड मोशन थोड़ी दिखेगा. अगर मैं वहीं पे हूँ इंक्लाइन पे ही, मैं अपने आप को रेस्ट पे मानूंगा. मैं तो बोलूंगा बस ये स्मॉल m नीचे जा रहा है और कुछ नहीं. तो मेरे लिए स्मॉल m का एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन a, नीचे की तरफ जाता हुआ. और अगर मैं ये लिख रहा हूं कि स्मॉल m का सिर्फ डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन है मेरे रिस्पेक्ट में, तो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि स्मॉल m का क्या फ्री बॉडी डायग्राम है. ऑलराइट, या सो लेट्स डू इट. स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखते हैं क्या क्या फोर्सेस है स्मॉल m पे. एक तो लगेगा mg गाइस, mg फोर्स लगेगा नीचे. दूसरा कौन सा लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन बना देते हैं. और कौन सा लगेगा? अब याद रखो सूडो फोर्स, क्योंकि अब हम वेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसका मतलब एक सूडो फोर्स लगेगा. किस डायरेक्शन में जरा कोई बताएगा? सूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा कि राइट में? टुवर्ड्स राइट सूडो फोर्स. कुछ बोल रहे हैं लेफ्ट में. जल्दी बताइए, सूडो फोर्स लेफ्ट या राइट? क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट. तो फ्रेम कहां एक्सेलरेट हो रही है जिस पे हम खड़े हैं? फ्रेम लेफ्ट में जा रही है, तो सूडो फोर्स तो राइट में ही लगेगा ना, उसके ऑपोजिट. तो दैट्स इट. तो सूडो फोर्स आपका लगेगा राइट में. तो ऑल दोस पीपल हु आंसर्ड दैट आर करेक्ट. अब बात आती है वैल्यू की. अब यहां पे कंफ्यूजन चालू होगा. कुछ लोग बोलेंगे कैपिटल M कैपिटल A, कैपिटल M स्मॉल a, स्मॉल m स्मॉल a. क्या वैल्यू होगी जरा बताइए? स्मॉल m कैपिटल A. अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट सूडो फोर्स? एनीवन एल्स? ओके, यू ऑल्सो एग्री विद दैट. एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने उसके लिए भी क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मास ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का. तो मास हुआ ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन हुआ फ्रेम का, कैपिटल ए. फ्रेम इस तरफ जा रही है. ऑलराइट, चलिए तो ये सारे फोर्सेस आ गए. और ब्लॉक मूव कैसे कर रहा है? ब्लॉक मूव कर रहा है डाउन द इंक्लाइन, ऐसे. तो मुझे तो बस डाउन द इंक्लाइन फोर्सेस से मतलब है. मुझे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं. तो वेरी इजी फॉर मी कि सबसे पहले तो mg के कंपोनेंट ले लो. mg का कंपोनेंट कौन सा आता है डाउन द इंक्लाइन? ये mg का. साइन की कॉस. डाउन द इंक्लाइन mg का कौन सा कंपोनेंट आता है?
किसी को नहीं पता ये? साइन, एग्जैक्टली, mg साइन थीटा आता है डाउन द इंक्लाइन, तो ये mg साइन थीटा आ गया। अब लेकिन ma के भी कंपोनेंट होंगे, ma के भी कंपोनेंट आएंगे, तो जरा ma के कंपोनेंट लेते हैं। एक तो होगा डाउन द इंक्लाइन और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ऐसे ma के दो कंपोनेंट हो गए। अब एंगल का क्या, तो ये देखो ये डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन है, ऐसे ये थीटा बन रहा होगा, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा, इजंट इट? तो इसका मतलब ये एंगल थीटा आ गया, मतलब डाउन द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज कॉस, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो आ रहा है दैट इज साइन। ये बात समझ में आई सबको? या somebody has found it out, बट उसमें स्मॉल ए आ रहा है आपके आंसर में, whosoever has given this, स्मॉल ए आंसर में कैसे आ सकता है जब वही फाइंड आउट करना है तो एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो चलिए गाइस, अब इक्वेशन लिख देते हैं। ए से ब्लॉक नीचे जा रहा है और कितने फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में, एक तो mg साइन थीटा और एक ma cos थीटा, बस दो ही फोर्स हैं उस डायरेक्शन में। सबको समझ में आ रहा है? एक तो mg का कंपोनेंट, एक ma का कंपोनेंट, बस दो ही थे डाउन द इंक्लाइन। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट इक्वेशन उसकी, दैट स्मॉल ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, क्योंकि हमें नीचे ये किस एक्सेलरेशन से जाता हुआ दिख रहा है, a एक्सेलरेशन से, इसीलिए। तो इसीलिए यहां पे हमने लिख दिया ma, ये पहली इक्वेशन हुई, राइट। देन a was not supposed to be there, okay, then it might be correct, check करेंगे, we'll see, but your answer doesn't have small m, answer must contain small m, तो अभी भी गलत है, चेक करो। So first equation clear, then let us write the equation perpendicular to incline. Perpendicular to incline, ये ब्लॉक मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, तो what are the forces perpendicular to incline, एक तो n है और एक ma sin थीटा है, तो लिखते हैं कि perpendicular to incline है n प्लस ma sin थीटा, और ये इन फोर्सेस को जो है कौन बैलेंस कर रहा है, जो इस तरफ ऐसे फोर्स लग रहे हैं इसको कौन बैलेंस करेगा, mg का इधर वाला कंपोनेंट, ये जो mg है इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, तो क्या वैल्यू है इस कंपोनेंट की, mg का जो इधर आता है cos परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, explain in English please, I'll try wherever possible, I can do that as well. So I think so far is clear, आपको समझ में आ चुका है so far। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ऐसे फोर्सेस और नीचे की तरफ mg cos थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं that the two forces on that side is balanced by mg cos theta this side। ये दो इक्वेशन हो गई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। why there is a problem, because there are three variables, कैसे, कैपिटल A, स्मॉल a एंड n, तीन वेरिएबल, इक्वेशन सिर्फ दो, तो ये तो सॉल्वेबल नहीं है, तो एक और इक्वेशन कहाँ से लाएं, वेयर शुड वी ब्रिंग अनदर इक्वेशन फ्रॉम, एनालाइज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इंक्लाइन प्लेन का मोशन देखते हैं कि इंक्लाइन प्लेन कैसे मूव कर पा रहा है, ऑलराइट। तो जरा इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इंक्लाइन प्लेन ऐसे है और इंक्लाइन प्लेन जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो अब मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है इंक्लाइन प्लेन पे, मुझे वर्टिकल से मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है कि मैं इसका mg लिखूं फिर नॉर्मल लगाऊं वर्टिकल में, कोई मतलब नहीं, राइट। सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में तो भैया देखिए इसका जो भी फोर्स लग सकता है वो ये कि इसने स्मॉल m पे लगाया नॉर्मल ऐसे, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, स्मॉल m इसके ऊपर भी लगा देगा नॉर्मल ऑपोजिट उसके, तो इसके ऊपर तो लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। ये सबको समझ में आया क्यों लगा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पे लगाया तो ब्लॉक ने इंक्लाइन प्लेन पे वापस लगा दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो चलिए अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे तो हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा, वर्टिकल से तो मुझे मतलब नहीं। एंगल जरा देखें कि एंगल का यहाँ क्या लेना देना है, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा आ गया, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा साइन एंड साइन थीटा।
तो एकमात्र जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, दैट इज n sin थीटा, और वो जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिख दोगे कि n sin थीटा, या नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऑर्डर में रहेगा। सो द थर्ड इक्वेशन वी मस्ट राइट इज n sin थीटा इक्वल कैपिटल M, इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, कैपिटल A, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की बात हुई थी, उसका मास कैपिटल M है। हाउ ऑल यू आर? वी आर ऑल गुड, यू से। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करिए। लेट्स सी व्हाट आंसर इज कमिंग। लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी। In this question, can you please explain the minimum value of f that should be applied so that m falls freely? Okay, that's a nice question. Sir, आपके cabin में blast होने वाला है। Okay, no worries, we'll still keep on teaching you. Blast भी हो चाहे कुछ हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। Physics पढ़ाते रहेंगे। ऑल राइट गाइज, ये एक बार कंप्लीट कर लीजिए। फिर किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, somebody has asked this nice question. Who are you? Can you give your name? Somebody has said how much force should be applied so that it falls freely, free fall हो जाए उसका। Yes, who is this? Who asked this nice question? Okay, now that person is not responding. M. Surbi, hello to all. Hello Surbi, you asked a really nice question. So, what are you doing right now? Are you preparing for JEE? So I hope everyone is solving these 3 equations. तीनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? ऑल राइट गाइज, तो अब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ओके, नाइस। तो सुरभि का क्वेश्चन लेते हैं। सुरभि इज सेइंग if at all this block is appearing to us with respect to ground, it should appear freely falling to us. तो उसके लिए क्या होगा, जरा बता सकते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देगा ब्लॉक का मोशन? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हमें दिखाई देगा कि m के 2 मोशन है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोइंग डाउन द इंक्लाइन, दैट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, एंड इट्स गोइंग टू द लेफ्ट, दैट कैपिटल A एग्जिस्ट। तो उसका मोशन विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, isn't it? It will be having a motion that is resultant of these two. So let us resolve it into vertical and horizontal direction. Small a will have 2 components, one here and one here, like this. So obviously this angle will be theta. So the component here is a cos theta, and the component down there is a sin theta. So what is Surbi demanding? Surbi is demanding that this a sin theta must become equal to gravity if it at all it is freely falling, isn't it? Surbi is saying that it must fall with gravity downwards. तो a sin theta वो किसके equate करेंगे? Gravity के। But is that the only condition we need? Is that the only condition we want, that acceleration becomes g downward? No, we have to make sure that no horizontal acceleration exists. Otherwise free fall कैसे हुआ? Free fall में तो only vertical acceleration is there. So you also equate capital A to A cos theta, right? तो आपने capital A को किसके equate किया? You made sure that there is no horizontal motion of this block. तो capital A equals A cos theta. और small a की value क्या आई? यहाँ से g by sin theta. That means the inclined plane
must be moved with an acceleration of g cot theta. अंडरस्टूड? क्योंकि आपने a को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया g बाय साइन थीटा, तो इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? g cot थीटा. तो ये आपकी कंडीशन आ गई फॉर फ्री फॉल मोशन ऑफ स्मॉल m. तो इंक्लाइन प्लेन पे आप इतना फोर्स लगा दीजिए जिससे कि इतना एक्सेलरेशन मिल जाए, एंड यू विल हैव योर आंसर. ओके, सो दिस क्वेश्चन डन. आर यू रेडी फॉर अनदर प्रॉब्लम ऑन सूडो फोर्स? एक और प्रॉब्लम करें? चलिए, लेट्स सॉल्व. या लेट्स सॉल्व अनदर वन. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है प्रॉब्लम, तो बड़े ध्यान से करिएगा. ये प्रॉब्लम अगर आपने कर दिया, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर जेई मेंस एंड एडवांस. तो चलिए, ऑल्दो इट्स टू सून टू जज जस्ट बेस्ड ऑन वन क्वेश्चन, लेकिन आपका आईक्यू तो पता चल जाएगा. तो चलिए, आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर दिस. अब क्वेश्चन है जिसमें फिर से एक इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन इस बार फिक्स्ड. तो आप बोलेंगे अरे सर इजी कर दिया आपने, तो फिक्स कर दिया इसको. अब वो आप डिसाइड करिएगा फिक्स करने से इजी हुआ या डिफिकल्ट हुआ इस केस में. अगेन इंक्लिनेशन एंगल इज थीटा. इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया हमने जो कि ट्राइंगुलर है. ये कैपिटल एम मास का. सो इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस इंक्लाइन, एंड दिस इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड दिस टाइम. ये मूव नहीं कर सकता. इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखते हैं. चलिए, स्मॉल एम का. और सिस्टम को रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट. सो कैन यू visualize what all will be happening? Every surface is smooth. All surfaces over here are smooth. जरा देखिए क्या होगा. कैपिटल एम नीचे जाएगा, स्मॉल एम उसके साथ भी नीचे जाएगा, और कुछ लेफ्ट में भी जाएगा. ये जाएगा या नहीं, ये आप सोचिए. तो पहला तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, विदाउट एनी कैलकुलेशन मुझे बताइए, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाउ वुड द मोशन ऑफ स्मॉल एम लुक लाइक. स्मॉल एम का जो मोशन है, या एक्चुअली आई हैव ओनली मेड यू सॉल्व दिस गाइस. आपको मेरा एक लेक्चर याद है, हाउ टू बूस्ट योर रैंक बाय 5000, या हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेई, सॉल्व दीज क्वेश्चन टू डू दैट. उस वाले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था, लेकिन उस वाले लेक्चर में मैंने विदाउट सूडो फोर्स किया था. यहां पे मैं सेम क्वेश्चन विद सूडो फोर्स बताऊंगा आपको. ऑलराइट, तो जरा देखिए. अब जिन लोगों के लिए पहली बार कर रहे हैं, आई विल गिव 4 ऑप्शन. हाउ वुड स्मॉल एम्स मोशन वुड अपीयर टू यू. स्मॉल एम का मोशन कैसे दिखेगा? राइट एट द सेम टाइम डाउनवर्ड, दिस टाइप. बी इज टू द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, सी इज ओनली डाउन, एंड डी इज somewhat like this side and this side. So among all these 4 options, which one depicts the motion of small m? Small m ground के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m इनमें से कैसे जाता हुआ दिखेगा आपको? कुछ लोग B बोल रहे हैं, कुछ लोग C बोल रहे हैं. Others please respond. Please respond. How would small m appear like? Okay. कोई ए भी बोल रहा है. अच्छा, ऑल राइट. अदर्स ए ऑप्शन, सी ऑप्शन. तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस होता जा रहा है यहाँ पे. हाउस इज डिवाइडेड, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कैसे जाएगा स्मॉल एम. तो चलिए राज खोल ही देते हैं, और राज खुलेगा तो आपको आश्चर्य होगा. करेक्ट आंसर है सी. C is the correct answer. स्मॉल m ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ नीचे जाता हुआ दिखेगा और कहीं नहीं, सिर्फ स्ट्रेट अवे नीचे. क्या जानना चाहते हैं क्यों ऐसा? डू यू वांट टू नो व्हाई इज इट सो? लेट मी एक्सप्लेन. या कैन यू टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन स्मॉल m? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड मीन्स यू आर ऑन एन इनर्शियल फ्रेम.
With respect to ground, what all forces are acting? Normal reaction and mg. Is there any other force? mg और normal reaction के अलावा कोई और force है with respect to ground? Nothing, isn't it? Only mg and normal. Both are vertical forces यहाँ पे. तो अगर सिर्फ vertical forces ही लग रहे हैं small m पे, then how can there be any horizontal acceleration? उसका सिर्फ vertical acceleration होगा. Is that understood? Small m पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और mg लगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन भी तो सिर्फ फिर वर्टिकली होगा. सी ऑप्शन, नो हॉरिजॉन्टल. सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड सी ऑप्शन. अब हमारा नेक्स्ट टास्क है इस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना कि इसकी वैल्यू कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, तो इसको चलो फाइंड आउट करते हैं. ऑलराइट. अब लेकिन हम यूज करेंगे आज के दिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स. तो सूडो फोर्स कैसे यूज करें, चलिए मैं आपको बताता हूं. पहले जाके हम कहां पे खड़े हो जाते हैं, वी विल गो एंड स्टैंड ऑन कैपिटल एम. तो सबसे पहला तो काम ये करो कि कैपिटल एम पे जाके खड़े हो जाओ इधर. अब यहां से आप एनालाइज कर रहे हो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, जैसे ही आप कैपिटल एम पे जाके खड़े हुए, अब कैपिटल एम तो खुद नीचे जा रहा है, isn't it? तो कैपिटल एम अपना खुद नीचे मोशन कर रहा है ऐसे. लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज कैपिटल ए से वो नीचे जा रहा है और उस पे आप खड़े हुए हैं. उस पे खड़े होकर आप एम को एनालाइज कर रहे हैं. तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप चले गए. नाउ यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये कैपिटल एम खुद एक्सेलरेट कर रहा है. तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं स्मॉल एम का, कि कैसा दिखेगा. तो अगर अब आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल और mg तो ऐसे ही जैसे आपने बनाया, ये तो है ही, इसमें तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, नॉर्मल और mg तो लगता ही है. बट देयर इज वन मोर फोर्स यू नीड टू इंक्लूड. कौन सा फोर्स बताएंगे, सूडो फोर्स. और कहाँ लगेगा, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट. तो अगर डाउन द इंक्लाइन फ्रेम का एक्सेलरेशन है, आप उसके साथ नीचे जा रहे हैं ऐसे डाउन द इंक्लाइन, तो आपका सूडो फोर्स उसके ऑपोजिट ऊपर. तो चलिए लगा देते हैं उसे, अपवर्ड सूडो फोर्स अप द इंक्लाइन. तो ऐसा एक सूडो फोर्स निकल के आएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एम ए इसकी वैल्यू होगी. तो वेरी गुड. अब इसके बारे में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे खड़े होके जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है. तो क्या दिखाई देगा भाई, आपको दिखाई देगा कि एम ए के दो कंपोनेंट ले लो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. तो एंगल कैसे क्या होगा, तो एंगल आप समझ ही पाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हो जाएगा. दिस विल बी थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये कॉस थीटा आएगा, एम ए कॉस, और ऊपर जो आएगा वो एम ए साइन. तो आपको अब इस ब्लॉक के कौन से मोशन दिखेंगे, क्या आपको वर्टिकली ये ऊपर नीचे जाता हुआ दिखेगा ब्लॉक यहाँ पे खड़े होके, नहीं दिखेगा. आपको तो लगेगा ये फ्लोर पे रखा हुआ है बस. सो यू वुड नॉट सी एनी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ स्मॉल एम व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर. सो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दो. ऑलराइट. तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर देते हैं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज हैं, एन ऊपर, एम ए साइन थीटा ऊपर और एम जी नीचे. तो जरा बैलेंस करो, एन प्लस एम ए साइन थीटा, these are the two upward forces and they must be equal to mg, right? they must be equal to mg. ये पहली इक्वेशन हुई. दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी कि ये लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में एकमात्र फोर्स है ma cos थीटा. तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा लेफ्ट में, उसको बोल देते हैं स्मॉल ए. तो हॉरिजॉन्टल में अब मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि अब हम ग्राउंड पे नहीं है, अब यहाँ पे, ग्राउंड पे होते तो ये दिखाई नहीं देता, यहाँ से दिखाई दे रहा है. तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं. क्या होगा इक्वेशन, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, वेयर ए इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू एज, ये वो है. और एट लास्ट क्या लिख दें, एट लास्ट लिख देते हैं कैपिटल एम की इक्वेशन.
जैसा कि हमने किया था उस समय। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए फटाफट। ये रहा कैपिटल एम, ये इस तरफ जा रहा है, तो मुझे सिर्फ कौन कौन से फोर्सेस चाहिए जो डाउन द इंक्लाइन है। तो डाउन द इंक्लाइन कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो इसका खुद का mg साइन थीटा, इसका mg साइन थीटा फोर्स। दूसरा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे। क्यों लग रहा है इस पे नॉर्मल, क्योंकि देखिए जब इसने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर लगाया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से वो ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल नीचे लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस कैपिटल एन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो दो कंपोनेंट ऐसे, एक इधर और एक वर्टिकल। आई कैन नॉट सी यू पीपल रिस्पॉन्डिंग, आर यू एबल टू रिस्पॉन्ड? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। I can't see any responses. Okay, you are able to. Okay, I hope you are understanding. चलिए, so ये मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। अब जरा बताइए कि कौन सा कंपोनेंट क्या होगा, कैसे हम एंगल्स वगैरह निकालेंगे। तो नॉर्मल ऐसे वर्टिकली डाउन लगाए और आपने इसके दो कंपोनेंट लेने हैं, ऐसे और ऐसे। तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो इसका मतलब नॉर्मल का भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन। तो डाउन द इंक्लाइन दो फोर्सेस एन साइन थीटा प्लस उसका खुद का कैपिटल एम जी साइन थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल ए। तो अगेन फिर से प्रॉब्लम सॉल्व, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल आपके सामने दिख रहे हैं आपको, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल। तो अब आप सॉल्व कर लेंगे इसे, बड़ा इजी हो जाएगा। वाई नॉर्मल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर तो है देखिए, क्योंकि सरफेस कैसी है, फ्लैट है ना। ट्राइंगुलर सरफेस की जो सरफेस है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ड्यू टू ट्राइंगुलर वेज, जो ये वाला, तो दैट इज फ्लैट। सो नॉर्मल इज वर्टिकली अप बिकॉज ऑफ दैट। अंडरस्टूड? That's why the normal is like this, and so is the normal. This is not the normal by inclined plane on it, this is the normal by that block on it. That is the difference. तो ये डिफरेंस है गाइस। आई होप कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं। पहली तो इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी कि m से m कैंसिल, a इक्वल a cos थीटा, कैपिटल A cos थीटा, और यहां से n को एलिमिनेट कर लेंगे आप दोनों इक्वेशन से, तो सिर्फ कैपिटल A वेरिएबल हो जाएगा। देखिए अगर यहां से आप n को हटा दें तो सिर्फ कैपिटल A वेरिएबल है आपके पास। ऑल राइट, तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, जरा बताइए क्या आंसर है। शैल आई सॉल्व फॉर यू? देखिए नॉर्मल की मैंने यहां से वैल्यू उठाई, तो नॉर्मल की वैल्यू मुझे वहां से दिख रही है कि इट इज mg माइनस स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा, देन देयर इज अ साइन थीटा हियर, प्लस कैपिटल mg साइन थीटा इक्वल्स कैपिटल M कैपिटल A। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया, देखिए जरा। तो यहां से अगर इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या निकल के आएगा, सो यू आर गोइंग टू गेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन थीटा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में यू आर गोइंग टू गेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक आंसर तो निकाल दिया। क्या ये आंसर आया आपका? सर व्हाट विल बी द अप्रॉक्स परसेंटाइल फॉर 230 प्लस इन मेल्स? देखिए अभी नया एनालिसिस जो है मेंस का विद द न्यू पैटर्न, विद द न्यू मार्किंग स्कीम, अब लास्ट वाले परसेंटाइल से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो अब नए सिरे से इससे हमें समझना पड़ेगा। सो यू ट्यून इन, विल बी हैविंग अ लेक्चर स्पेशली ऑन दिस, कि कितने परसेंटाइल पे आप कितना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी हैविंग।
सो कैपिटल ए आ गया गाइस, तो स्मॉल ए तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, कैपिटल ए टाइम्स कॉस थीटा, इसमें बस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेकिन सिर्फ वर्टिकल मोशन, और वो वर्टिकल मोशन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, अब इसके दो एक्सेलरेशन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप बोलोगे कि एक स्मॉल ए ये दिखा रहा था, कैपिटल ए ये दिखा रहा था, तो इसके अगर दो कंपोनेंट लें कैपिटल ए के, तो डाउनवर्ड वाला जो बस कंपोनेंट है कैपिटल ए का वो काउंट होगा, और ये वाला जो होगा आपका एंगल, ये थीटा है, तो ये कैपिटल ए कॉस थीटा और कैपिटल ए साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल कर गए एक दूसरे को इस इक्वेशन से, स्मॉल ए इज कैपिटल ए कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, इसलिए मैंने कहा हॉरिजॉन्टली आपको जाता हुआ ही नहीं दिखेगा, सिर्फ वर्टिकली। वर्टिकल में कितना एक्सेलरेशन, ए साइन थीटा, तो यही आपका आंसर है, कैपिटल ए साइन थीटा इज योर आंसर। तो इसमें ऊपर भी एक साइन स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर, कि स्मॉल एम का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। थैंक यू फॉर द नाइस और सेइंग दैट इट्स अ नाइस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये आज के लिए था सूडो फोर्स पे आपके लिए क्वेश्चन मैंने बनाए। अब सम पीपल वांट हियर फॉर सर्कुलर मोशन आल्सो, राइट, कि सर्कुलर मोशन के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएं सूडो फोर्सेस पे। डू यू ऑल वांट दैट, सर्कुलर मोशन सूडो फोर्सेस, और व्हाट इज द टॉपिक दैट यू वांट नाउ टू स्टडी? कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप? मोर क्वेश्चंस यू वांट? I am from class 9th. That's really nice. You will be learning a lot. तो जल्दी बताइए कौन सा टॉपिक रखें हम अगली क्लास, then we'll be putting that topic for you. You all want to learn fluids? Fluids कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? How many of you want to learn fluids in physics? So not many of you wants. Gravitation पढ़ना है. I am from class 9 advanced. Oh, it's really nice. Fluids would be great. All right. Fluids would be great. चलिए, तो फिर fluids का ही रखेंगे. Very early you're going to get, now very soon you're going to get a lecture on fluids. Okay, stay tuned. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली बार. All right? Okay guys. Good night then. Gravitation भी चल रहा है, देखिए हर लेक्चर चल रहे हैं। आपको अब क्या करना है, गो ऑन दी इंस्टासॉल ऐप और क्लासरूम वाले टैब को क्लिक करिए। एवरी टाइम यू क्लिक दैट यू आर हैविंग वन लेक्चर कमिंग अप एवरी डे। तो उसमें ग्रेविटेशन भी आएगा, उसमें किनेमैटिक्स भी आएगा, सारे ऑप्शंस आएंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड देयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।